Good afternoon, friends. We are back again on this Sunday on this week's MindSpeak webinar on a very interesting subject of family business management. The art of family business mentoring and coaching is about guiding family business leaders in their personal quests for growth through learning. The coach acts as a trusted guide, offering advice when asked and opening doors to learning opportunities when possible and appropriate. It can make a real difference to the success of family business leaders, leading to improved family harmony and business strength. Our speaker today is Mr. Sunil Shah. He is an expert in addressing the issues relating to family business governance and estate planning. He specializes in partnering with families that help them to take their minds out of unnecessary conflicts and focus on growth by setting up family constitutions for business growth to maintain the family harmony and help the mentoring, the coaching for the next generation. The topic for today is creating family harmony through family constitutions to build stronger businesses. Through structured processes and meetings, families learn to resolve the most important family and business issues and create a roadmap for the next generation also. A little background on Mr. Sunil Shah. He's an MBA finance from the IIM Ahmedabad. He's been managing the family business for generational success from the Harvard Business School and is a certified coach for family business issues and has a certification in arbitration law from the Indian Institute of Arbitration and Mediation. He has been president at the IIM Ahmedabad Alumni Association and chairperson of the IMC Finance Committee. He has served on the advisory committee of Chartered Institute of Securities and Investment, London, and advises a leading global private equity fund also. He is also a visiting faculty on family business at the IIM Ahmedabad and in the Indian School of Business in Hyderabad. His company is known as Evergreen Family Business Advisors. They were acknowledged as the knowledge partner for the Indian Family Office Roundtable. He has been in the media and chaired various conferences and forums on several occasions. He has also been keynote speaker at the Family Business Summit, YPOs, Rotary, Jito, etc. So before we begin, I would recommend you to keep your questions on the chat right after we through with the webinar. And Sunil Bhai will surely try to answer them at the end of his presentation. We have 90 minutes for this webinar, and we shall keep a short time of about 10 minutes for questions and answers. So over to you, Sunil Bhai. You are in charge now. Thank you. There's a message on the chat that people are finding a lot of disturbance. So maybe yes, there is some disturbance. We can cut off we can mute everybody, maybe. No, everybody is mute, Sunil sir, but your voice is very audible, no problem. Am I audible to you? No, there is somebody's disturbance coming continuously. So I'll mute everybody. Okay. Yeah, mute the rest of the people. Okay. So good afternoon, everybody. And thank you, Ashok Bhai and MindSpeak for inviting me to come and talk to you about my life learning in the area of family business, in particular about making family agreements. I would take about 45 minutes in my talk. So I request you to put your questions on chat or write them down because we have a lot of time at the end. Nowadays, we are all attending many webinars. And some of them are like Gyan sessions where people come, they talk, we listen and we feel good about it and we go home. So I don't want to give you that kind of an experience. I would request you to listen to it from a point of view called, how is it relevant to me? What is my takeaway from whatever the speaker is saying? So my presentation will have 3 parts.
and I will stop at the end of each part and give you a minute to note down your own takeaway for yourself. You don't have to share it with anybody, but it will be valuable to have something that you take away and not that it's another Hindi movie. Okay. Can we have a little combo of Hindi English? Yeah. Don't worry. Just let me introduce the topic and then I will try my best. Okay. Thank you. So, so there are a lot of surveys on family business which have taken place around the world, and the data tells us that 50% of families are not able to make a transition from single owner even to their own children. And then you are left with 50% who do, and they are not able to make the second transition from brothers to cousins. And there 60% of the families are failing, leaving only therefore 20% who successfully manage through transition two generations. तो 20% लोग हैं जो दो पीढ़ी का ट्रांजिशन कर सकते हैं from father or founder to brothers and children and then to cousins, or 80% are failing. And that should focus all of us कि ये ऐसी बात नहीं है कि माइनर बात है, हम ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे. We need to give our time, our attention, our energy, our prayers कि ये हम कैसे ये ट्रांजिशन को नेविगेट कर सकते हैं. So the global best practice which I am going to share with you, आज के वार्तालाप में मैं जो आपसे बात करूंगा वो है फैमिली एग्रीमेंट का प्रैक्टिस. और इसको भारी भरकम शब्द हम वापरते हैं हमारे काम में, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान. पर ये संविधान छोड़िए, अपने बीच में हम समझते हैं एक एग्रीमेंट बनाने के लिए क्या कारण है, एग्रीमेंट में क्या होता है वगैरह. तो मेरा टॉक है उसके 3 पार्ट है. पहले आई विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक अबाउट फैमिली बिजनेस एंड व्हाट पीपल हैव लर्नड. काफी बड़ी एकेडमिक डिपार्टमेंट है ये जो खाली फैमिली बिजनेस को स्टडी करती है. और यदि आप फैमिली एग्रीमेंट की किताब लेने जाएं तो अमेज़न में 120 किताब मिलती हैं. तो बहुत सारे लोग इसका अभ्यास करते हैं. तो पहले हम 10-5 मिनट में ये थोड़ा अभ्यास में इन लोगों ने क्या निकाला है वो मैं आपसे शेयर करूँगा. फिर सेकेंड पार्ट में फैमिली एग्रीमेंट में क्या होता है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ दैट. नॉर्मली फैमिली एग्रीमेंट में मैंने कई फैमिली एग्रीमेंट किए हैं, मैं 12 साल से ये काम करता हूँ. तो नॉर्मली क्या क्या आता है और उसमें मैं आपको एक दो आपको उदाहरण दूंगा कि ऐसी फैमिली में ऐसा एग्रीमेंट बना वैसा बना. ये थोड़ा आपको सो रियल लगे, ये कोई एकेडमिक ऊपर जाने वाली बातें ना रहे. एंड थर्ड पार्ट इज प्रैक्टिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, एग्रीमेंट बनाने का प्रोसेस कैसे चलता है और क्या ध्यान में रखना चाहिए. ओके तो मैं अभी ये शेयर करता हूँ मेरा प्रेजेंटेशन. इट विल मेक इट लिटिल बिट इजियर फॉर मी. तो कुछ साल पहले बार्कलेस बैंक ने स्टडी किया था 40 कंट्री में कि कितनी कंट्री में फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, बिजनेस दो लोग साथ में करते हैं. और ये गुड न्यूज़ नहीं है कि हम वर्ल्ड में हमारा नंबर 1 आया. 61% फैमिलीज ने ये रिपोर्ट दिया बार्कलेस को कि हमारे यहाँ बहुत वाद विवाद है और हम ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे. और कंट्रीज में अलग अलग नंबर आए थे बट ये हमारा नंबर आया है. तो सबसे पहला हमको ये हकीकत समझना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया खाली 20% लोग 2 बार ट्रांजिशन कर पाते हैं फ्रॉम फादर टू चिल्ड्रन टू ग्रैंड चिल्ड्रन. एंड हमारे देश में 61% ऑफ पीपल ये कहते हैं कि हमारे संबंध खराब हो गए और बिजनेस खराब हो गए. और अपने लिए आप भी ये मनन करें कि आपकी फैमिली की एनर्जी डे टू डे, मंथ टू मंथ कहाँ जा रही है. कई लोग मुझे मिलने आते हैं, मतलब आई मस्ट हैव मेट few hundred families by now,
एंड ये कॉमन बात ये है, लोग ये उल्लेख करते हैं कि हमारी एनर्जी, ये जो 4 या 5 सवाल हम उसको सुलझ नहीं पाए, तो हमारी पूरी एनर्जी जाती है इसी में कि ये सवाल का जवाब क्या होगा, जैसे कि अगला लीडर कौन होगा, डैडी रिटायर कब होंगे, थर्ड जनरेशन का क्या हिस्सा होगा। तो ये बाद में हमारा माइंड उसी में रहता है, और जो कंपनी को बढ़ाना चाहिए, जो ग्रोथ करना चाहिए, उसमें से ये डाइवर्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो पुत्र मोह की बहुत बड़ी बीमारी है, भगवान के घर से लेके हमारे घर तक ये तो बीमारी है ही है। बट एक बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ये कोई हमारा डेस्टिनी नहीं है, ये हमारे कर्म नहीं है, ये हमारा नसीब नहीं है। हम यदि हम प्रोएक्टिव रहें, मतलब हम इसमें इंटरेस्ट लें और हम लोगों के साथ, फैमिली के साथ मिल के एग्रीमेंट बनाने का कोशिश करें, तो ये वर्ल्ड में सक्सेस हुआ है। ई मर्क नाम की एक फार्मा कंपनी है, वो 14 जनरेशन से साथ में है, और हम 1 या 2 जनरेशन नहीं कर पाते। पर उनसे हम जब मिले तो आई कुड नॉट बिलीव दैट 14 जनरेशन। अब आप सोचो, चिल्ड्रन के चिल्ड्रन चिल्ड्रन चिल्ड्रन, मे बी 300 years have passed and they are very happy. वैसे जापान में there are over 100 companies and families who are over 100 years old. तो ये बॉटम लाइन इज, ये कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। यदि हम खुले दिल से उसमें जाएं तो वी कैन ऑल्सो मेक अ फैमिली एग्रीमेंट। और बिजनेस में वैसे भी 100 टाइप ऑफ चैलेंजेस हैं, तो ये अपने को भी ये सोचना चाहिए, आर वी बेटर ऑफ टुगेदर और सेपरेटेड, आर वी मोर कंपेटिटिव टुगेदर और सेपरेटेड। जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया, वर्ल्ड में बड़े बड़े एकेडमिक एरिया है। हार्वर्ड में देयर आर ओवर 100 फैकल्टी हु आर ओनली इन द एरिया ऑफ फैमिली बिजनेस, येल में वगैरह वगैरह। तो उन लोगों ने क्या खोज निकाला है, तो ये मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर अपन एग्रीमेंट में हम आएंगे कि हम कैसे एग्रीमेंट बनाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है, और ये मेरे काम में भी मैंने देखा है, कि फैमिली का जो लीडर हो, ये जरूरी नहीं है कि दादाजी लीडर है। कुछ फैमिलीज में लोग रिटायर हो गए हैं, कुछ फैमिलीज में पेरेंट्स ने बच्चों को बोला है अभी तुम संभालो, हम खाली ये 1 या 2 आइटम देखेंगे, फाइनेंस देखेंगे वगैरह। जो भी करता धरता है, जिस ऑन हुज एनर्जी वी आर ऑल राइडिंग, ऑन दैट गाय, उसका सपोर्ट बहुत जरूरी है। ही शुड बी एनरोल्ड। टीम में 8th मैन और 9th मैन सपोर्ट करे, इसकी वैल्यू है, बट इतनी वैल्यू नहीं है कि कैप्टन सपोर्ट करे। तो कैप्टन, ये बात आप लोगों को, उसमें फैमिली में जो 100 लोग हैं, शायद कुछ कैप्टन होंगे, तो उनकी एनरोलमेंट इंपॉर्टेंट है। बट जो कैप्टन नहीं बैठे हैं हमारे साथ, उनको मैं ये कहता हूँ कि फैमिली लीडर को एनरोल करना, उनको ये बात एडुकेट करना कि ये डेंजर है और ये ऐसा है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या हम नाजुक सवाल को उठा सकते हैं, या कई बार लोग फैमिली में आते हैं मेरे पास, फिर मैं प्रोसेस में सबके साथ मिलने के बाद में अकेले अकेले मिलता हूँ। तो अकेले जब मैं मिलता हूँ तो ये बोलते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, मेरे को ये टेंशन है, आगे क्या होगा वगैरह। तो फिर मैं पूछता हूँ तो ये आपने सबको बताया है? तो 99% ऑफ द टाइम मेरे को ये जवाब मिलता है, नहीं ये तो आपको मैं कहता हूँ, और मेरा नाम नहीं देना, नहीं तो मेरा बुरा लगेगा, लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे, लोग मुझे ये समझेंगे वो समझेंगे। तो कोई भी फैमिली एग्रीमेंट बनाना है और अपने को पीढ़ी पीढ़ी आगे अपनी बिजनेस चलानी है, फैमिली की बॉन्डिंग बढ़ानी है, तो एक एटमोसफियर होना चाहिए वो प्रोसेस में कि कोई भी नाजुक सवाल आराम से मैं बोल सकूं, उसमें डिसअप्रूवल नहीं होना चाहिए, या लोग क्या बोलेंगे, या लोग क्या बोलेंगे। तो फिर क्या होगा, वो सब प्रेशर कुकर के माफिक अंदर रहेगा, गुड़ 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 होते रहेगा, और फिर एक दिन आप जानते हैं प्रेशर कुकर का क्या होता है, यदि उसमें सेफ्टी वाल्व नहीं है। तो ये प्रोसेस है,
कि सालों का प्रेशर कुकर का धुआं पहले तो 2-4 दिन में मैं निकाल देता हूँ, और भी जो कंसल्टेंट हैं, कि टू रिमूव ऑल द टेंशन एंड मेक इट फ्री फॉर पीपल टू टॉक। तो जब आप प्लेन, तीसरी बात ये है कि हम प्लेन में जाते हैं तो वो एयर होस्टेस कहती है कि हो सके कि आपको आगे जाके एयर पॉकेट मिलेगी, एयर पॉकेट आएगी तो प्लेन ऊपर नीचे जाएगा, तो आप जरा अपनी पेटी बांध के रखिए। ये प्रोसेस का जो फ्लाइट है, जर्नी है, उसमें मेरी तरफ से ये गारंटी है, डाउट नहीं है प्लेन जैसा, 100% एयर पॉकेट होगा। और उस वक्त वी हैव टू बी कमिटेड, प्रतिबद्ध, कि हम इसको एंड तक देखेंगे। जितनी बार एयर पॉकेट आते हैं तो हम प्लेन खोल के नीचे नहीं गिर जाते हैं, वैसे भी ये प्रोसेस में एक बार या तो अंदर आओ मत, और आए हैं तो फिर एंड तक चले आएंगे। चौथा जो इन्होंने सिखाया है और समझाए हैं ये लोग हार्वर्ड वाले, कि ग्रोथ विद हार्मनी कोई ऐसा ऑटोमेटिक चीज नहीं है कि जो बन जा सकता है, इसमें हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, और जो जो प्रॉब्लम एरिया हमको ठीक करना है, तो ये प्रॉब्लम है जिसको मैं अभी इसका नाम सिंपली बोलता हूँ कंटिन्यूटी का, ट्रांजिशन का, उसको हमको अहम स्थान देना है। वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस, वी हैव टू गिव टाइम, वी हैव टू गिव एनर्जी, एंड से हाँ आई हैव टू सॉर्ट इट आउट, एंड आई एक्सेप्ट कि देयर विल बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, एंड आई वांट टू resolve them as far as we can, that the family will grow and the company will grow. जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया, यदि हमारी एनर्जी इसी में चली जाएंगी तो बिजनेस में नहीं रहेगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि थोड़ी मैच्योरिटी ऑल ऑफ अस हैव टू हैव। हमको ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि मतभेद को हम स्वीकारें, कि हाँ मेरा व्यू ये है, अशोक भाई का व्यू वो है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ मेरे पीछे पड़े हैं या मेरे को कुछ ले जाना चाहते हैं या कुछ खा जाना चाहते हैं या ऐसा। एक्सेप्ट कि मतभेद है, और मतभेद में से अपने मन में मनभेद ना बनाएं, ये निवेदन है। और ये जो बीमारी है उसका मैं डॉक्टर हूँ, और मैं आपको कहता हूँ इसके 3 दवाई है, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेट। वार्तालाप कीजिए, व्यक्त कीजिए अपने विचार, और उसको नेगोशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं। और आखिर बात वो जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इन लोगों ने ये भी कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक केस में फैमिली एग्रीमेंट बन जाएगी। जैसे मानो कोई बीमार है तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी जो डॉक्टर के पास जाता है वो मीठी मीठी होम्योपैथी की गोली खा के ठीक हो जाएंगे। कोई केस ऐसे होते हैं कि डॉक्टर बोलेंगे ये सर्जन का है, यानी कि डिवीजन का है, और कोई केस ऐसे भी होते हैं कि डॉक्टर बोलेंगे कि वी कांट डू एनीथिंग, बट वो एमिकेबल डिवीजन भी करना है। यदि डॉक्टर ये बोले नहीं इसमें ऑपरेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, उसके लिए भी संवाद जरूरी है। उसके लिए भी एक मीटिंग का ग्राउंड चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहां लोग आके बात कर सके, ताकि इवन डिवीजन हैज टू हैपन एमिकेबली, ताकि एटलीस्ट हमारी फैमिली रिलेशन बचे। फिर बिजनेस का जो होता है होते हैं। 1 मिनट, चैट में कुछ बार बार लोग, हाँ अच्छा ये तो क्वेश्चन था, ठीक है वो बाद में दिखता है। हाँ ओके, तो फिर अभी I will give you a little story and then I'll give you a break. I hope you are all listening intently, और आप अपने लिए ये सब जो पहले पार्ट है उसमें से आपको what did you learn? तीन भाइयों की कहानी। मद्रास में एक मेरा केस था। पहले भाई वो फार्मा के बिजनेस में थे। पहले भाई गांव से आए, उन्होंने धंधा चालू किया। फिर थोड़ा, वो तो बहुत छोटा था, थोड़ा बड़ा, दूसरे भाई को बुलाया, मानो ए, फिर बी, फिर सी। पहले तो
इतनी यूनिटी रहती थी और ऐसा कोई वेल्थ नहीं था, तो आराम से खुशी से सबने, बड़े भाई ने दूसरे और तीसरे भाई को पार्टनरशिप दी। उन्होंने बोला आपने शुरू किया है, यू बी 45%, 40%, एंड ये दोनों 30% में आए। सब अच्छा चल रहा था, कंपनी अच्छी चली। जब मेरे पास आए तो संजोग ये थे कि पहले भाई को 2 बेटी हुई थी, बेटे नहीं थे, और परंपरा के अनुसार ये फैमिली में ये विचारते थे कि हमारा बिजनेस आगे हमारे जो भी बेटे हैं वो ही चलाएंगे। दूसरा भाई बी, उनको पहले एक बेटी हुई, फिर एक बेटा। तीसरा भाई सी, उनको 2 बेटी हुई और कई साल के बाद एक लड़का हुआ। तो बी का जो लड़का था और सी का जो लड़का था, उसमें 15 इयर्स का गैप। तो जो बी का लड़का है वो तो काम पे आ गया, जब मेरे पास आए तो ये तो ऑलरेडी 15 ईयर्स से काम कर रहा था, और आधा बड़े लोग का काम आधा वो अपने आप पे ले लिया, और बड़े लोगों ने भाई तू जा, ये ट्रैवलिंग कर, वहां जाना है फैक्ट्री पे, मैं नहीं आता हूँ। तो धीरे धीरे ही हैड बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। बट ये लोग आए इसलिए कि अभी ये सवाल उठा था कि बड़े लोग धीरे धीरे सेमी रिटायर होने लगे हैं, तो ये बी का लड़का है, उसको हम कैसे मोटिवेट करें? क्या हम उनको कोई शेयर दें, क्या उसको हम कुछ इंसेंटिव बनाएं? बट ये तो प्रॉब्लम छोटा था, बिकॉज एवरीबडी वॉज विलिंग टू गिव एंड दे रिकॉग्नाइज their contribution। बट सी का लड़का जो काम पे भी नहीं आया था उस वक्त, जब हम मिले तब मैं कॉलेज में था, इंटर कॉमर्स में, तो वो सी बोल रहा था कि बी के लड़के को जो भी देंगे वो मेरे लड़के को देना, वी आर इक्वल, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है फैमिली का। और ये मत था कि नहीं ये तो 15 साल से है, तो वॉट एवर हम देना चाहेंगे, he has earned it, he has proved it, he has proved himself। तो इनको हम इक्वल नहीं कर सकते जो लड़का कॉलेज में है उसके साथ। बहुत मतलब इसमें तो बहुत हेडेक एंड बहुत डिस्प्यूट रहा। 2 बार ऑफ साइड में ले गया, वो लोग बम्बई आए, मैं खंडाला ले गया, बट कुछ भी करने के बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये अपने आप उन्होंने ये रास्ता निकाला कि बी का लड़का है, हम रिकग्नाइज करते हैं कि आज वो पार्टनर जैसा ही है, 15 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है, एंड ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब, एक नया बिजनेस शुरू किया है वगैरह वगैरह। तो उसको उन्होंने नक्की किया कि दे विल गिव हिम अ 10% पार्टनरशिप, और ये 3 लोग हैं वो प्रो रेटा अपने शेयर कम कर देंगे। और तीसरा जो है, जो अभी तो कॉलेज में है, अभी उसको कुछ नहीं, लेकिन बाद में जब वो काम पे आएगा, आफ्टर 5 years ऑफ वर्क, उसको 5% मिलेगा, फिर सभी लोग कम करेंगे अपना शेयर, और फिर और 5% मिलेगा और 5 साल के बाद। ये सोल्यूशन जो है उसमें सब खुश रह गए, एवरीबडी वॉज हैप्पी। बट ये जरूरी नहीं कि यही एक सोल्यूशन है। कई फैमिली में ऐसा मानते हैं कि ओनरशिप राइट है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जितने मैन हैं वो उतने उनका शेयर है, फिर आपके लड़की है लड़का है जो भी है, दैट्स योर प्रॉब्लम। तो और तीसरे ग्रुप ऑफ फैमिली है, वो एक रास्ता निकालते हैं, डिफाइन मिडिल वे, कि ओनरशिप कम्स फ्रॉम पेरेंट्स, बट वो प्रॉफिट शेयर कुछ ना कुछ बच्चों को दे देते हैं। तो पहले चिल्ड्रन हैव, बिकॉज इफ दे आर मोर एक्टिव and they are going to be running the future and they have to be kept happy, so they will inherit from their parent, जो उनको पेरेंट्स है उनका शेयर मिलेगा। बट उनको एक अलग अलग केस है, बट इधर इतना टाइम नहीं है कि मैं सब बताऊं। तो उनको कुछ इंसेंटिव पहले प्रॉफिट में से 20%, 25% पहले अलग डिवाइड हो जाता है, और फिर एल्डर्स में डिवाइड होता है। तो तीनों रास्ते हैं, ऐसा नहीं है मेरे पास एक ही जड़ी बूटी है। हर एक फैमिली के खुद के संजोग, लोगों की पर्सनालिटी, विजन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपने को अपना रास्ता निकालना चाहिए।
तो अभी आई गिव यू अ 1 मिनट ब्रेक। ये इंट्रोडक्शन में से यदि आपको कोई भी बात आपके दिल को छू गई या आपके दिमाग को छू गई कि हाँ मिस्टर शाह जो बोल रहे हैं इसमें से ये बात हमारी फैमिली में मैं I can use it, to take a minute and write it down. So you have a concrete takeaway from our talk. So I'll wait for a minute and then I'll continue. Okay, so part 2 of my presentation ये है कि नॉर्मली फैमिली एग्रीमेंट में क्या होता है। तो आज के प्रेजेंटेशन में मैंने अज्यूम नहीं किया है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जिनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। इफ एनीबडी हैज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो उसका एग्रीमेंट अलग तरह से बनता है। तो देयर आर रेगुलेटरी क्वेश्चंस अंडर द कंपनीज एक्ट वगैरह, एक पूरा एक लीगल सब्जेक्ट है। आज हम सोचते हैं कि हमारी नॉर्मली देशी पीढ़ी है और हमारी मानो 2-4 भाई बहन जो भी है, इसका हम एग्रीमेंट कैसे बनाएं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इट हैज 3 पार्ट्स। नंबर 1 स्ट्रक्चर, नंबर 2 पॉलिसी, नंबर 3 प्रोसेस। तो हम इस पे विल स्पेंड 2 minutes ऑन ईच ऑफ इट। जैसे देश में अपने को इंडिया चलानी होती है, व्हेन पीपल हैव टू रन अ कंट्री, तो उसके संविधान में भी एक स्ट्रक्चर है। ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाने का। ये सुप्रीम कोर्ट है, उसका काम है कि अपील किसी को करनी है, कोई अन्याय हो गया तो वो वहाँ जाते हैं कि भाई हमको न्याय दो, और लॉ को इंटरप्रेट करने का। पुलिस है, उनका फलाना काम है, आर्मी है, उसका वहाँ काम है। ऐसे भी हमको यदि फैमिली में, और छोटी फैमिली में भी ज़रूरी है कि कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। और स्ट्रक्चर की सबसे इम्पोर्टेंट अहम वैल्यू क्या है कि हर एक आदमी को अपने विचार व्यक्त करने की एक कोई जगह मिले, प्लेटफॉर्म जो मैं कहता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में लाइफ यदि लाना है तो पीपल शुड हैव अ वॉइस, पीपल शुड नॉट हेजिटेट टू टॉक। तो ये नॉर्मली एक कॉन्स्टिट्यूशन में 4 स्ट्रक्चर होते हैं। जो एक बड़े लोग हैं, जैसे कि अपन फैमिली में बड़े हैं, पेरेंट्स है, चाचा है, ताया है, कोई कजिन मामा, ये वो जो भी लोग हैं, तो हम अपने बुजुर्ग समझते हैं। उनको नॉर्मली फैमिलीज में फैमिली काउंसिल बोलते हैं, ये सबसे सीनियर है। एंड जो जो भी नाजुक सवाल है, जो विच आर रियली सेंसिटिव और लिटिल बिट ऑफ मोर उम्र का जो तकाजा होना चाहिए, पीपल शुड बी मोर मैच्योर, टेक अ बैलेंस्ड व्यू, और वो लोग उसमें होने चाहिए। वो एवरीबडी विल फील कि हाँ ये लोग ने कहा तो ये ठीक है। तो एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो फिर उसके आगे कोई रास्ता नहीं है, वही रास्ता है, दी एंड। और हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो 10 में से 9 बार तो ठीक ही होगा। तो एक ये ऐसा होना चाहिए। और काउंसिल का एक काम है टू मैनेज के छोटे छोटे डिफरेंसेस दे डोंट बिकम डिस्प्यूट, और इन उसको मीडिएट करके उसका उपाय निकालना। नंबर 2 फैमिली का एक बोर्ड बना सकते हैं, अपना खुद का फैमिली बिजनेस बोर्ड, विच इज नॉट लाइक कंपनीज एक्ट वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक दिल्ली के हमारे क्लाइंट थे, तो दे हैव प्रोबेबली मेड द बेस्ट फैमिली बिजनेस बोर्ड इन माय 12 years। तो उनके 2 लड़के थे, एंड द प्रॉब्लम वाज फादर वाज सेइंग कि यदि मैं मेरे लड़के को कुछ भी बोलता हूँ कि तुम्हारी ये गलती है वो गलती है, तो मेरा पूरा फैमिली का वातावरण खराब हो जाता है। वो जाके उसकी माँ को कंप्लेन करता है, माँ रात को मेरा सर खाती है। तो आई एम ऑलवेज इन टेंशन। सो मेरे को जो बोलना है मैं बोल नहीं सकता हूँ, बिकॉज दे आर नॉट अकाउंटेबल।
मतलब उनको कहीं जवाब नहीं देने की कोई जगह ही नहीं है। When they have to go and they have to reply कि कैसे काम किया या क्या हुआ या क्या नहीं। फिर छोटी बात थी, ये कोई विदेश चले गए थे, 2 महीने के बाद आए वगैरह, तो इसे कोई है ही नहीं इसको उनको कोई कह सके। तो मैंने उनको ये सुझाव दिया कि आप ये फैमिली बिजनेस बोर्ड बनाइए, उसमें आप और आपके दोनों बच्चे, और उनके फैमिली में मदर वॉज ऑल्सो वेरी एक्टिव इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। मतलब वो कंपनी चलाने में नहीं आती थी, पर ये जो हो रही थी, तो उन्होंने पहली मीटिंग में मुझे कहा कि देखिए ये मेरे बच्चों का सवाल है, मेरे हस्बैंड का सवाल है, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस। तो उनको भी हमने साथ में रखा, तो मम्मी डैडी और दोनों बच्चे। फिर उन लोगों को मैंने कहा कि आप 2 लोग ढूंढिए बाहर के, ऐसे नहीं कि आपके दोस्त ये वो जिसके साथ आप गोल्फ खेलते हैं या ड्रिंक पे जाते हैं, बट ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके बिजनेस में दे आर सीनियर टू यू। जैसे कि कोई कंपनी में, बड़ी कंपनी में उन्होंने काम किया है, तो ये लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, तो कोई गैनन डंकर लेके कोई एमडी को लेकर आए जो रिटायर हो गए थे, और उनको बोला कि आप आइए, दे हैव टू पे हिम प्रॉपर्ली, इट्स नॉट दैट सम टाइम पास वर्क। एंड वो भी एक हस्ती है, तो आ रहे हैं हमारे यहाँ और हमारे बोर्ड पे बैठेंगे, यही एक ऑब्लिगेशन है। तो दे पेड हिम, दे गिव हिम ऑल रिस्पेक्ट। ऐसे मैकिन्जी के एक रिटायर्ड एमडी थे, उनको उन्होंने लिया, तो 2 बड़े लोग को लिया who are not, I mean who are known to them, but not कि भाई ये उनके बड़ी है। और मैं दोनों बच्चों को बोला कि कोई भी नाम आएंगे तो both the boys have to agree, both have a veto। तो ये वॉइस आता है और उनको कॉन्फिडेंस आता है कि ये बोर्ड में भी मेरी सुनवाई होगी। आई हैव ऑल्सो अप्रूव द पर्सन हु इज गोइंग इन दैट बोर्ड। ये बोर्ड बहुत अच्छा चल रहा है। हर 2 महीने दोनों लड़के जाते हैं, बोर्ड मेंबर को प्रेजेंटेशन करते हैं। बोर्ड मेंबर को कुछ लेना देना नहीं है वेदर यू आर हैप्पी और नॉट हैप्पी, और ना दे आर वरीड अबाउट के रात को वाइफ कुछ बोलेगी। ऑन द कॉन्ट्री, very nicely they are able to guide them in a constructive way, criticize them if they are wrong, tell them to do better work, and it's the most beautiful board, and the company has grown like mad. It must have grown 10-20 times because now everybody is accountable. So it's not like a family dinner where people are coming and having fun. People are accountable. The board is demanding कि दोनों बच्चों से कि you do this, you do that। और डैडी को भी थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि उनको भी बोलते हैं कि भाई आप ही ये काम करो, वो काम करो, and they are making everybody productive. If you want to grow, then there has to be that productivity as part of the entire culture of the family. तीसरा स्ट्रक्चर है सेफ्टी फंड। आजकल मेरे आई थिंक 99 ऑफ 100 क्लाइंट ये फैमिली के लिए बनाते हैं। एज आई टोल्ड यू पहले, तरह तरह का टेंशन है बिजनेस में। गवर्नमेंट का तो पता ही नहीं चलता, क्या क्या डिमांड निकालते हैं इनकम टैक्स वाले, ये वो। ऐसे जैसे ये अभी कोविड आ गया, कभी किसी ने सोचा नहीं है कोविड आएगा और कब जाएगा ये भी नहीं पता। तो फैमिलीज आर पुटिंग असाइड सम मनी एंड सेइंग कि हम फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं। हमारा नॉर्मली इंडियन फैमिली में फैमिली का जो भी वेल्थ है वो सब कंपनी में ही होता है। तो कल उठ के कंपनी को कोई डिफिकल्टी आ गई तो देयर इज एक्चुअली नोवेयर टू गो। सो फेमसली बर्मन फैमिली है डाबर के, तो उनकी 2 कंपनी है, तो उन्होंने एक कंपनी बेच दी और वो पैसे का एक फंड बनाया और बोला दिस फंड विल टेक केयर ऑफ आवर एंटायर फैमिली। और यहाँ भी कि हमारे बच्चे हैं, we have only need for 2 people in the other company, एक्चुअली हमारे 10 पीपल है, तो उनको भी हम प्रमोट करेंगे कि आप अपना धंधा करो और ये हमारे फंड से हम उसको फाइनेंस करेंगे। तो इस तरह से हम एक सेफ्टी फंड बनाते हैं। लेडीज का उसमें सेफ्टी आ जाता है, सिक्योरिटी आ जाता है, लगन, वेडिंग, ये वो, मेडिकल, ये सब चीज एक अलग फंड में से चले जाता है। वो लीगल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इनफॉर्मली भी कर सकते हैं। और लास्ट आइटम जो है वो फैमिली मीटिंग्स कि रेगुलरली प्रॉपर फॉर्मल फैमिली मीटिंग्स हैव टू बी हैड। तो कई लोग मुझे कहते हैं, जब मैं बोलता हूँ अरे नहीं हम तो डिनर पे भी बिजनेस की बातें करते हैं, नहीं वो बात नहीं। इट हैज टू अकर इन अ वे इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम एग्रीमेंट बना रहे हैं और हम जब सबको इज्जत देते हैं, बड़ों को छोटों को, तो दे शुड हैव ए प्लेटफॉर्म।
तो वो प्लेटफॉर्म है फैमिली मीटिंग। वो फैमिली अपने आप नक्की करती है कि महीने में एक बार मिलेंगे या क्या, अच्छा छोटी मोटी बातें कुछ क्लियर करनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो भी सब इसमें क्लियर हो जाती है। तो ये 4 स्ट्रक्चर है, दे आर लाइक 4 टेबल, 4 लेग्स ऑफ अ टेबल। एग्रीमेंट को बनाने में ये 4 चाहिए। यू हैव ओनली 2 or 3, द टेबल विल फॉल। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। पॉलिसी यानी नियम। तो जब फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाती है, अब 2 लोग की फैमिली है, तो नियम बनाना काफी इजी होता है। 1-2 बच्चे हैं, बट अभी मैंने एक केस लास्ट ईयर कंप्लीट किया, तो देयर वर 17 पीपल जो 3 देश से आते थे, कमिंग फ्रॉम अमेरिका, जर्मनी एंड इन इंडिया, इन 2-3 प्लेसेस ऑफ महाराष्ट्र। So lot every policy has to be made, and lot everybody has a different opinion because वो बड़े ही अलग अलग कंट्री में हुए हैं, कल्चरली वो अलग है। सबका नाम होगा XYZ, बट कल्चरली उनके विचार अलग है। जो यूएस में रहे हैं वो थोड़ा ऐसा, हमारी नज़र से वो लोग मुंहफट है, उनकी नज़र से वो फ्रैंक एंड ऑनेस्ट है। तो ये इन लोगों को सबको मिला के काफ़ी टाइम लगता है। बड़ा फैमिली है तो टाइम लगता है, टुक मोर देन अ ईयर टू डू द एग्रीमेंट। और हर एक चीज़ में देयर वुड बी कल्चरल डिफरेंसेस, बट ये सब पॉलिसी जो है, ये मैंने सैंपल लगाई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि सबकी ड्यूटी क्या है। अभी क्या हुआ है, मेरी उम्र के लोग, हम तो कभी, हमारी कोई राइट हमने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, सब फैमिली फर्स्ट, जो भी फैमिली का जो हेड था वो जो बोले हम कर लेते थे। बट अब बच्चे फॉरेन जाते हैं, टीवी देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, पीपल हैव अ डिफरेंट एक्सपोजर and they have their own independent view, and they need to be involved. And also it has to be made clear, okay, what is your entitlement to take from the family, what are you supposed to do and give to the family. तो ये एक टाइप की पॉलिसी। नंबर 2, विमेन का सवाल है। इंडिया में इट इज बिकम अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट ने और हिंदू सक्सेशन एक्ट की अमेंडमेंट आई है 2006 में, तो विमेन के काफ़ी राइट्स है। और आजकल क्या होता है, लोगों के 1 या 2 बच्चे हैं, बेटियां उतना ही पढ़ती हैं जितना बेटे पढ़ते हैं। कई फैमिली में मैं देखता हूँ, द विमेन आर मोर इंटेलिजेंट, दे आर मोर स्मार्टर एंड दे आर रियली वेरी कॉम्पिटेंट। एंड सम फैमिलीज एटलीस्ट इन मेट्रोपॉलिटन इंडिया, बड़े बड़े शहरों में, तो बेटी को भी बोलते हैं आप भी आ सकते हैं, यू कम, यू रन माई एक्स बिजनेस, वाई डिपार्टमेंट वगैरह। तो उनकी क्या राइट्स है, क्या होगा, शादी होगी तो क्या होगा, उनके बच्चे होंगे तो क्या होगा, सन इन लॉ का क्या होगा, ये सब टॉपिक खुले दिल से डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सेकेंड टॉपिक इज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉम्पेंसेशन। एम्प्लॉयमेंट का सवाल कब आता है, जब बहुत सारे फैमिली के मेंबर हैं और कई फैमिली फिर ऐसा नक्की करते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, काम नहीं है इतने लोगों के लिए। बट कई फैमिली, जैसे मेरे खुद की जब जॉइंट फैमिली थी, तो इट वाज लाइक एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। लड़का बड़ा हुआ तो ऑफिस में आ गया, फिर पता नहीं क्या करता है, स्लोली उसकी थोड़ा कुछ पावर बन गया, तो फिर उसका उपाड़ चालू हो गया, एंड सो मेनी चिल्ड्रन देन बिकम ए लाइबिलिटी टू द कंपनी। So some companies and some families are saying, let us think, do we need 1 guy, do we need 2 guys, or do we need 10 guys? And then वो बच्चे सब डेवलप हो गए, एंड एवरीबडी इज एलिजिबल, मतलब वो आने के लिए हकदार है, लेकिन एंटाइटल्ड नहीं है। मतलब ये नहीं कि दे आर, दे कैन से मैं आ गया हूँ, अब मैं भी आपका इक्वल हूँ, नहीं। तो पीपल शुड बी एलिजिबल टू कम, एंड फिर फैमिली काउंसिल वाले लोग या फैमिली बिजनेस बोर्ड वाले लोग नक्की करेंगे कि who is ready to come in and who should be trained. And some people, as I told you, Burman family can be encouraged to go out. अभी मैं एक केस खत्म किया बम्बई में, महाराष्ट्रियन फैमिली है, तो उनका एक्चुअली अच्छा बिजनेस है, वेरी प्रॉफिटेबल, बट द वे इट इज that they don't really need so many people, and then there are 4 brothers, उनके some 9-10 children, so there is no work for 10 children. So they have decided कि हम 2 लोग को ही रखेंगे। एक सबसे बड़ा बेटा है, उनको रखा है, और एक बेटी है, उसको अकाउंट्स में रख दिया है कि सब
साहब का देख लें, और 8 people they have encouraged them and financed them to study and to create a career out. तो ये भी एक सवाल है which people have to talk about. Third is family business board जैसी कोई structure होंगी तो can we actually evaluate people who are working and say you are doing a good job or not. Normally ये families को बहुत मुश्किल होता है to be able to give that kind of feedback. But ये यदि हम सब नक्की करें कि हाँ we are going to treat each other with mutual respect like a professional, तो ये पॉलिसी बन सकती है. कॉन्फ्लिक्ट का ये है कि पीपल शुड नॉट बी डूइंग अगल बगल के धंधे जो हमारे मेन धंधे से रिलेटेड है. तो जैसे एक मेरे क्लाइंट थे जिनकी होटल थी, तो उनका फिर एक लड़का बोलता है मेरे को अलग रेस्टोरेंट का बिजनेस चालू करना है. तो फैमिली ने बोला यू कैन नॉट डू दैट, दैट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ माई होटल बिजनेस, वी विल नॉट अलाउ दैट. नेक्स्ट जनरेशन पॉलिसीज के बारे में मैं बाद में आगे बात करूंगा, तो उसको आगे छोड़ देता हूँ. फैमिली फन, जैसे ये 17 people from 3 countries, so you won't believe it, apart from weddings they have never met. तो wedding जो होनी थी हो गई, सब बड़े हो गए, so they had not come for 2-3 years, people had not met at all. So then I encourage them, you go together, have a holiday, and because you need some liquidity in the relationship, and people now are growing up in different homes, nuclear family में. ये भी एक सवाल उनको भी उठता है कि people are having different upbringing. अभी मैं पूना का केस किया तो there are 4-5 brothers and one of the brothers is थोड़ा happy go lucky. तो उसका लड़के को भी वही, उसने ये देख देख के उसने भी ये सीखा कि भाई हाँ ठीक है 1-2 घंटा काम पे आओ, फिर बाहर घूमो, लड़कियों को घुमाओ, ये सब. तो फैमिली has said नहीं, we will take over that boy and we want him to be, उसको यूटिलाइज करना है, हमारे लिए ये एसेट है, ये घुमाने फिराने के लिए हमको नहीं चाहिए बच्चे. तो ये टाइप का इसकी ऐसी पॉलिसी बन सकती है. ये हर एक में मैं एक आधे घंटे का टॉक दे सकता हूँ, बट अभी तो 1 घंटे में पूरा टॉक दे रहा हूँ, तो खाली मैं झलक दिखा रहा हूँ. सेफ्टी नेट मैंने आपको बता दिया. एंड यदि 3rd जनरेशन के बाद, इंक्लूडिंग 3rd जनरेशन, अभी फैमिलीज ये नक्की करती है कि किसी को निकल जाना है तो उसका मेथड क्या होगा, वैल्यूएशन क्या होगा, उनको पैसे कैसे मिलेगा. बिकॉज एज पीपल शेयर बिकम स्मॉल, अभी वो ई मार्क वाला मैंने एग्जांपल दिया जो 14 पीढ़ी से चल रहे हैं, तो 14 जनरेशन में नोबडी हैज अ शेयर मोर देन 1%. तो somebody में से मेरे को ये ई मार्क का 1% लेके क्या करने का है, आई डोंट वांट. मेरे को मेरा लेट अस से म्यूजिक का बिजनेस शुरू करना है, या मेरे को फलाना काम करना है, या चैरिटी में देना है. तो देयर शुड बी एन मेथड एंड मेथडोलॉजी टू वैल्यू एंड अलाउ दैट पर्सन टू गो आउट. उनकी बहुत अच्छी मेथडोलॉजी है, बट ये एक इन जनरल दिस काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट नीड्स टू बी देयर. सक्सेशन तो अब हमारे देश में हॉट टॉपिक है. पुत्रमोह की बीमारी घर घर में है, कैसे मैनेज करें. कई क्लेमेंट है. पहले तो ऐसा था कि एल्डेस्ट है, फिर उसका एल्डेस्ट वो ऑटोमेटिकली बॉस बन जाएगा. वो आज के दिन में बहुत कम लोग मानते हैं. एंड लॉट ऑफ पीपल आर कॉम्पिटेंट, एंड कई बार ऐसा होता है कि एल्डेस्ट गाय मे नॉट बी विलिंग टू डू और मे नॉट बी केपेबल or may not be great in business, but he may be a wonderful person. Like एक अहमदाबाद का family है, तो he's a wonderful person. If you meet him, you don't want to get up. But business में वो wonderful नहीं है. तो he keeps the family together. किसी को भी किसी से complain है, वो लोग जाते हैं बड़े भाई के पास, वो settle कर देता है कुछ. He will manage everybody and keep the whole everybody in one sync. But he's not the right guy to lead the company. तो उन्होंने अंदर अंदर नक्की किया है कि हमारा जो 3rd भाई है, youngest, he will be the leader and we will all accept this decision. ये जरूरी नहीं है, ये प्रोसेस जरूरी है कि हमारी लीडरशिप प्रोसेस कैसे रहेगी. क्योंकि वो चीज है ना, वो प्रेशर कुकर में गुड़ गुड़ करती रहती है. इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. एंड आई हैव सीन कई फैमिली में ये टॉपिक अवॉइड करते हैं और ऐसा मानते हैं कि हम टाल देंगे तो देखा जाएगा बाद में
फिर तो प्रेशर कुकर फूटने का दिन आता है तभी वो देखते हैं। तो ये एक विषय है जो सब लोग बात कर सकते हैं। ये इस तरह के विषय जो है सबके मन में है। मेरे 100 में से 99% फैमिलीज, ये जो सब मैं बात यहाँ whatever I'm telling you, it's from my own life of 12 years. I know what people, उनके मन में what is going on, which they don't talk about. And if you give them that opportunity, they don't stop talking. आधे घंटे की मीटिंग 2 घंटा चलती है। फिर एक और प्रॉब्लम आता है, डिसीजन मेकिंग जब मेंबर्स ऑफ द फैमिली बहुत ज्यादा हो जाता है, और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना कि सभी लोग आ जाते हैं कंपनी में, तो डिसीजन कैसे लें? पहले जब 2 या 3 भाई थे तो हर एक डिसीजन बॉक्स के लोग 3 लोग बैठ के नक्की कर लेते थे, तो एक तरह से सबकी मतलब सहमति चाहिए थी और हर एक डिसीजन सर्वानुमति से होता था। पर वो 3 में से 8 लोग हो गए, वी कैन नॉट डू इट यूनानिमसली। तो इसके भी एक नियम बना सकते हैं कि ये टाइप के डिसीजन ABCDE वो हम यूनानिमसली करेंगे, ये हम मेजॉरिटी करेंगे, ये हम पावर जो भी कंपनी चलाता है अपने अपने डिपार्टमेंट में ये पावर उनको देंगे। तो इसका एक पूरा प्रोसेस बना सकते हैं। वैसे ही लोगों को यदि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आएंगे तो हाउ टू डील विद दैट। सो इट इज नॉट दैट वो जाके एक दूसरे को घुसुट पुसुट करते रहे और पूरा फैमिली का एटमोसफियर खराब करें। नहीं, इट शुड बी टेबल्ड बिफोर काउंसिल और काउंसिल इसको इस तरह से डील करेगा। और लास्टली ये जो एग्रीमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कुछ साल के बाद रिव्यू करना चाहिए। नॉर्मली आई एडवाइज आफ्टर 5 years और 10 years। तो उसका प्रोसेस क्या होगा, ये भी एक है। तो अभी एक टाइम है एक और स्टोरी कहने का। तो ये एक मेरे दिल्ली के पंजाबी फैमिली है, इनकी कहानी है। 2 boys, very brilliant, one little about 4 or 5 years elder, तो पहले आ गया काम में। अदर गाय he came little later on, and फैमिली एग्रीमेंट के जो पहली मीटिंग है वो पहली एग्रीमेंट में यंगर बॉय सेड कि मिस्टर शाह आई विल एग्री टू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कबूल करूंगा और जो सब नक्की करेंगे मेरे को कबूल है, लेकिन मेरे को ये कबूल नहीं है कि कल उठ के मेरे बड़े भाई मेरे बॉस बनेंगे, क्योंकि हम इक्वल ही है, हम एक साथ में बड़े हुए हैं। वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है तो मैं कैम्ब्रिज में पढ़ा हूँ, मेरे नंबर उससे कम नहीं आए हैं, मेरा कुछ अनुभव खराब नहीं है, मैंने कोई बड़ा लॉस नहीं किया है। तो मैं उनको, मेरे मन में कभी मैंने सोचा ही नहीं है कि मेरा बड़ा भाई मेरा बॉस बनेगा कल डैडी के बाद या डैडी रिटायर हो। पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस लगभग 8-9 महीने चला, एंड बहुत अच्छा। यही लोग हैं जिन्होंने वो फैमिली बिजनेस बोर्ड बनाया, बाहर के लोग को बुलाया वगैरह। Everything was so beautiful, but on this one matter he was not willing to compromise. तो ये सब देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि हर एक आदमी राम बनने को तैयार है, बट अभी लक्ष्मण बहुत इजीली नहीं मिलते हैं। तो चलो अब लक्ष्मण, मैं राम के पीछे पीछे चलो मैं भी वनवास में जा रहा हूँ, बहुत कम मिलते हैं। भरत जो बोलेंगे मैं पादुका लगा के फिर राम जी के नाम से आई विल रूल, वो भी बहुत कम मिलते हैं। राम के रोल के लिए बहुत लोग हैं। तो यहाँ तो ये प्रॉब्लम था कि यहाँ देयर वाज 2 राम नो लक्ष्मण, एंड ही वाज वेरी क्लियर। एंड यहाँ तक कि से नहीं तो मेरे को अलग कर दो, आप मेरे को बोलो उनके 2-3 बिजनेस है, मेरे को फलाना कोई भी बिजनेस दे दो, फिर मैं अपने आप चलूंगा। फादर वाज वेरी क्लियर, नहीं हमारे यहाँ तो यही परंपरा है, वैसी परंपरा है, हम पंजाबी है फलाना। और ये छोटा लड़का हाउ डेयर ही। धीरे धीरे सबको शांत करते करते ऐसा नक्की हुआ कि 2 कंपनी है मेन, तो एक कंपनी एक चलाएगा, दूसरी कंपनी द सेकंड फेलो विल रन, एंड पेरेंट्स के बाद में पहले फादर के बाद में मदर विल बी द चेयरमैन ऑफ द बोथ द कंपनीज। जैसे आपने देखा है अभी रिलायंस में भी कोकिला बहन थी, राष्ट्रीय बिरला जी रही है बिरला ग्रुप में। मदर विल बी द चेयरपर्सन होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर, एंड देन दे बोथ इन ईच अदर्स कंपनी, मतलब ए के कंपनी में बी का 30% शेयर रहेगा और ए का 70, और बी के कंपनी में अदर वे राउंड।
तो एक तरह से वो फैमिली साथ में रहा, दे वर एबल टू फाइंड ए कॉम्प्रोमाइज, इट वाज ओके विथ एवरीबडी, दे फाउंड अ ट्रांजिशन प्रोसेस आल्सो कि डैडी के बाद मम्मी, मम्मी के बाद ये, एंड इट्स गोइंग ऑन वेरी वेल टिल नाउ। तो लीडरशिप इज अ वेरी हॉट टॉपिक। मैंने इसका एग्जांपल इसलिए, एवरीबडी वांट्स टू बी लीडर, सब लोग को राम बनना है, बट राम मतलब इतने ही, रामायण में एक ही राम होता है। तो ये एक यूनिक एग्जांपल है कि वी आर एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर 2 people, बट इफ देयर आर 10 people we need to find other solutions where everybody is comfortable and happy. तो अभी मैं आपको 1 या 2 मिनट देता हूं कि ये सब एग्रीमेंट की बात में आपको कोई भी चीज अब लगा कि हाँ ये मेरे फैमिली में मेरे को ये करना चाहिए या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो प्लीज नोट इट डाउन सो यू हैव अ टेक अवे फॉर योरसेल्फ, इट इज अ कॉन्क्रीट थिंग। जरा मनन कीजिए and you will, you know, really have some value out of our 2 hours together. तो आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएं, एग्रीमेंट कैसे बनाएं। तो ये है ना आर्ट है, उसका क्राफ्ट भी है, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन के आपको बुक मिलेंगे, मैंने बोला अमेजोन में कुछ 125 बुक मिलते हैं, वो कैसे बनाए और लोगों को कैसे जोड़े, वो एक आर्ट है। और ये आर्ट में क्या है कि पहले तो कई सालों से वो प्रेशर कुकर में जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, उसको धीरे से निकालने का रास्ता एक सेफ्टी वाल्व से, टू अलाउ दैट स्टीम टू गो अवे। जो अपसेट है या अनएक्सप्रेस्ड कम्युनिकेशन है, कुछ बात कहनी है, कह नहीं पाए तो अंदर ही अंदर रह के सड़ गया है, तो ये about 1/3 of the work is actually clearing the past. तो जो लोग बंबई में रहते हैं वो लोग समझेंगे कि बंबई में कोई करोड़पति या अबजपति की भी बड़ी जगह हो तो बड़ी जगह खुली वैसी खड़ी रहती है, तो 6 महीने में 1 साल में वहां अभी झुग्गी झोपड़ी भैया तुम लोग कुछ लो और जाओ, वैसे ही हम यदि संवाद कम्युनिकेशन का, इफ देयर इज नो कल्चर, ये झुग्गी झोपड़ी हमारे दिमाग में आ जाती है, हमारे दिल में आ जाती है, और स्लम्स आ जाते हैं हमारे मन में, और लोगों, हर एक आदमी को किसी के लिए कोई कंप्लेन है, किसी को ये कंप्लेन है, वो ऐसा हुआ जैसा हुआ, इसकी वाइफ ने ये कहा मेरी वाइफ को। तो ये क्लीन करना, मैं ऑलवेज सबको बोलता हूँ कि पहले तो हमको हमारे मन के स्लम्स को निकालना है, क्लीन करेंगे तो उसके ऊपर हम एक नई इमारत बनाएंगे। तो लॉट ऑफ टाइम गोज इन क्लियरिंग द पास्ट, about 1/3 of my time goes in that, and to make people, encourage them to be able to communicate. तो कि भाई उनको ये विश्वास होना चाहिए कि मिस्टर शाह को कुछ बोलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तुरंत जाके डैडी को नहीं बोल देंगे या मेरे ब्रदर को नहीं बोल देंगे या वाइफ को नहीं बोल देंगे। तो दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज नीडेड बिकॉज पीपल हैव टू ट्रस्ट द इंटरमीडियरी। इफ दे ट्रस्ट दैट इंटरमीडियरी, देन आफ्टर दैट, ये स्लम्स निकालने के बाद, प्रेशर कुकर का धुआं निकालने के बाद, और लोगों का विश्वास यदि मिल गया, then the work is very fast, because then इसमें मैंने लिखा है 1-on-1 सेशन, के लोगों के साथ इंडिविजुअली बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे देश में वो एक मर्यादा वाली बात है कि बड़ों के सामने मैं ये नहीं कह सकता हूँ,
वैसे ही बड़े ऐसा बोलते हैं, आजकल उल्टी मर्यादा चल रही है कि बोलते हैं ये बच्चों को मैं ऐसा बोलूंगा तो घर में तूफान हो जाएगा। तो आई ऑल्सो मीट वन ऑन वन विद पीपल। और फिर ये पूरी जो बड़ी बातें हमने अभी की कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, पॉलिसी, ये सब हम डिस्कस करते हैं। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हेन आई वी नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अ पर्टिकुलर फैमिली। कोई फैमिली की एनर्जी कहाँ फंसी है, मानो सक्सेशन में फंसी है या शेयर होल्डिंग में फंसी है, या कई फैमिली में सब किसी के भी नाम पे कुछ भी है और मतलब किसी को पता ही नहीं कि मैं क्या ओन करता हूँ या नहीं ओन करता हूँ, मेरे नाम को क्या आना चाहिए। बट बड़े होने के बाद पीपल वांट टू हैव क्लैरिटी। अभी ये जो बम्बई की फैमिली में अभी कहा आपको, जो who have kept 2 people inside and 8 people out, तो everything is was all in hodgepodge, but each of the 4 brothers, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, और अभी उनके बच्चे होने का टाइम आ गया, तब तक हॉटस्पॉट चल रहा है। तो हॉटस्पॉट को क्लियर कर सकते हैं। एंड दैट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। नॉर्मली मैं लोगों को ऑफ साइड ले जाता हूँ कहीं, ताकि डे टू डे झंझट से वो थोड़ा अलग होके खाली माइंड से, फ्रेश माइंड से दे आर एबल टू वर्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा प्रोसेस नॉर्मल फैमिली में लगभग 4 से 6 महीना लगता है। इट टेक्स अबाउट 10 days वर्क। अभी बहुत जिद्दी लोग हैं तो 20 days लगेगा, और अच्छे भले लोग हैं तो 6 दिन लगेगा, बट ऑन एन एवरेज अबाउट 10 days। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, people have to be committed, so that's why I do an introductory workshop and I make everybody attend, and I request all the women to also attend, because women are important, whether whatever we think in India, and they influence our mind. So let them also understand कि ये क्या प्रोसेस हो रहा है और हम क्यों कर रहे हैं, so that they are also enrolled, they are not an obstacle, and they will support the process. तो इस प्रोसेस में अल्टीमेटली थोड़ा अपने को, we all need to have a mind of letting go, a feeling of compromise, कि हाँ भाई, it can never happen कि anybody enters the process with 10 demand और 10 out of 10 demand accept हो जाएगी। किसी को कुछ लेट गो करना पड़ेगा, किसी को कुछ लेट गो करना पड़ेगा। तो ये गिव एंड टेक by that process, as I gave you the examples above, people were able to compromise and come to solutions merely in a space of give and take. But when they can do that, when they are really committed कि हाँ, this is my family, I don't want it to break up, मेरे को वो 20% में रहना है, वो 80% में नहीं जाना है, एंड आई एम रियली कमिटेड, और बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है और हमारी एनर्जी बिजनेस में जानी चाहिए और यहाँ वहाँ सब स्टूपिड सवाल में नहीं जानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस में कुछ सवाल हैं, आई एम जस्ट रिपीटिंग देम, which we need to give little more importance. One is, as there are many more and more members, how will we take decisions? ये अब हमने बात की है। फिर नॉर्मली मैं सबको ये बोलता हूँ, पर्टिकुलर नई जनरेशन जो है, तो सबको अपनी दूसरे की कंप्लेन होती है, अरे ये तो खाली 3 घंटा काम करता है, वो तो खाली टेनिस खेलने चले जाता है। अच्छा, लड़के बोलते हैं, अरे मेरे डैडी ओल्ड फैशन है, मैं तो स्टारबक्स में लैपटॉप लेके काम करता हूँ और मेरा काम हो जाता है, क्या जरूरत है, पता नहीं वो क्या क्या ऑफिस में जाके 12 घंटे क्या काम करते हैं। तो ये सब पीढ़ी फेर विचार होते हैं, पीढ़ी फेर विचार को भी नजदीक लाना चाहिए। वन ऑफ द वे वी कैन डू दैट इज टू हैव अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट। और कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऐसा ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से नहीं आना चाहिए, नीचे से आना चाहिए, कि लोग खुद अपना ही कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाए। और ये बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है, और मैंने ये देखा है कि विद लिटिल गाइडेंस एंड गुड फैसिलिटेशन, पीपल क्रिएट ए रियली गुड कोड ऑफ कॉन्डक्ट, और वो खुद बनाते हैं, और क्योंकि वो खुद बनाते हैं फिर वो वायलेट बहुत कम करते हैं। बट वो नियम ऊपर से आते हैं तो फिर सभी लोग वायलेट करते रहते हैं, और फिर कौन उनको डिसिप्लिन करेगा, एक बड़ा सवाल रहता है। यदि देयर आर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीडरशिप, इफ देयर आर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ कजिन्स, तो हाउ विल बी मैनेज द क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप, बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हमने थोड़ी बहस की है। हमारे बोर्ड में कौन आएंगे, ये नहीं कि ये हमारे गोल्फ वाले फ्रेंड है या कार्ड्स वाले फ्रेंड है या हमारे सीए के भाई वाइफ की फैमिली के हैं, कोई
let there be people who will contribute to us. ये agreement हम क्यों बना रहे हैं? To grow our company. So let there be people who will create that kind of growth, who will be a benchmark for us, who will ask for us कि तुम आगे बढ़ो, not कि ठीक है जो भी किया ठीक किया क्योंकि तुम मेरा बेटा है. So that type of board मैंने आपको example भी दिया है. तो quality people we need to put. सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हाउ विल आवर बिजनेस ग्रो. तो मैं नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन जब बनवाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि साथ साथ में आप 5 ईयर बिजनेस प्लान बनाइए, नॉट विथ मी, ऑन योर ओन. आप यू कैन कम एंड ब्रीफ मी व्हेन वी हैव अ मीटिंग. तो क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऑल दिस स्मॉल स्मॉल कंप्लेन, ये तूने ये किया, तूने वो वही नहीं किया, वो पार्टी में मेरे को नहीं बुलाया, ये सब बकवास, पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मनी. ये कहने में अच्छा नहीं लगता है, बट मनी इज अ गुड यूनिफायर. इफ पीपल कैन सी के अपॉर्चुनिटी है एंड पीपल फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ द स्लम्स, तो ऑटोमेटिकली माय प्रोसेस विल एक्सेलरेट. मेरे प्रोसेस में जान आ जाती है, बिकॉज देन दे से अरे व्हाट आर वी वेस्टिंग आवर टाइम इन ऑल स्टूपिड स्टूपिड थिंग्स. बड़ी बात तो ये है कि हम वी कैन मेक फ्रॉम 1x to 10x. व्हेन दे फोकस ऑन दैट, there is great power. There's a rocket fuel development, and the agreement moves fast. But now people are looking at the money, at the growth, at the status, instead of thinking about whatever chicken things about. तो ये सब जर्नी है. आई हैव बीन टॉकिंग ऑलमोस्ट 50 minutes now. तो आपको लगता होगा कि हाँ ये 6 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए. तो बैड न्यूज इज ये तो खाली पहला चरण है. उसके बाद के सबसे इम्पोर्टेंट चरण ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और एग्रीमेंट हमने जो नक्की किया है वो हमारे दिल में उतारे, हमारे दिनचर्या में उतारे, हमारे कामकाज में उतारे. क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं? लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना मुश्किल नहीं है लगता है. कभी कभी पहली बार यदि आप सुन रहे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत मुश्किल है. ये तो हम बनाते हैं, बट उसको एक्चुअली अपने जीवन में उतारना वो सबसे डिफिकल्ट है. और डिफिकल्ट तो है कि हमारी आदतें हैं, पुरानी कंप्लेंट है, वो स्लम्स है, वो खाली जगह में वो स्लम वापस आ जाते हैं. तो उसको लिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रियल चैलेंज. And some people fail and some people don't. But the important thing all of you should know, in a constitution, once you have made it, there will be breakdown. जैसे एरोप्लेन में एयर पॉकेट आएंगे, ऐसे आप अपने हाईवे पे गाड़ी चलाएंगी तो गाड़ी कभी कभी गर्म हो जाएगी, कभी कभी कुछ हो जाएगा, पंचर हो जाएगा. ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन हो गया. इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली ब्रेकडाउन हो गया. ठीक है, उसको ठीक करके गाड़ी आगे चलाते हैं, हम थोड़ी गाड़ी वहां छोड़ दे रहे हैं. बी रेडी फॉर दैट ब्रेकडाउन एंड बी रेडी टू क्रिएट अ ब्रेक थ्रू आउट ऑफ एवरी ब्रेकडाउन. एक और एरिया है मेरे काम का, मैं इसमें खाली 2 मिनट जिक्र करता हूँ. ये सब हम एग्रीमेंट बनाए, जैसे मैंने कहा पीढ़ी फेयर है. लोग कुछ लोग फॉरेन जाके पढ़ के आते हैं, उनके विचार अलग होते हैं. पहले जैसा नहीं रहा है कि सब हमारी कम्युनिटी में ही शादियाँ हो. लड़कियां भी अलग जगह से आते हैं, लड़के अलग जगह से आते हैं, अलग कल्चरल टाइप के लोग आते हैं. तो फैमिली का जो, और न्यूक्लियर फैमिली में अलग अलग रहते हैं, तो फैमिली को बॉन्ड कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नेक्स्ट जनरेशन की बॉन्डिंग हो. और यदि हम विदेश लिखते हैं और बहुत कुछ पढ़ाते हैं तो वो बच्चों में भी थोड़ा थोड़ा ईगो आ जाता है कि मैं तो कोई बड़ा तोप हूँ, हार्वर्ड में जाके पढ़ के आया हूँ, फलाना पढ़ के आया हूँ. to bring them and make them productive and to be in touch कि हमारी फैमिली की ये वैल्यूज है, ये परंपरा है. हम
आगे हम इस तरह का फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है टू ब्रिंग चिल्ड्रन इनटू इट। क्योंकि हम बड़ा एग्रीमेंट बनाए पर चिल्ड्रन उसमें एग्री नहीं करते हैं, उसका एनरोलमेंट नहीं हुआ, तो क्या फायदा? नो वैल्यू। तो एग्रीमेंट एकेडमिक रह जाएगा। तो ये भी एक चीज वी नीड टू थिंक अबाउट। तो ये पूरा मेरा लेक्चर है। आई होप कि आप लोगों ने इसमें से अपने दिल में, अपने काम में, अपनी कंपनी में उतारने वाले कुछ विचार लिखे हैं, एंड यू हैव दैट टेक अवे फॉर योरसेल्फ। एंड the opportunity is great. As I told you, it is for you to be a leader in your own life, to be a leader in your boss, leader. Thank you. Really enjoyed, Sunil Bhai. Every element of the discussion that we had, I think, covered a lot of points. I have one question before we try to, come to the understanding of whatever has been said through. Right. How true is it, in fact and reality, that the first generation generally builds the foundations of a business and foundations of the family? The second generation sustains whatever has been done by the first generation. And the third generation, 80% of the time, destructs whatever has happened in the last two generations. So ये 80. How far is this true? That is, all the global surveys are telling that 80%, जो beginning में पहली slide में मैंने कहा था, 80% of the families, they get divided and their companies are destroyed by the third generation. ये इतिहास है. That is the historical fact. But in the last 20-25 years, everybody has woken up to the idea कि ये सब बनाने के बाद हमको, we don't want to destroy it. So people are making family agreements, and now, I mean, abroad it is now becoming very rare to have any family dispute in public like we have in India. And in India also we are learning. जब मैंने काम चालू किया था तो people used to laugh at me, you know, when I आया हूँ हार्वर्ड से वगैरह और ये ऐसे एग्रीमेंट बनाते हैं, तो लोग बोले नहीं नहीं, हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो ऐसे आज जब मैंने बताया तो मैंने रियलाइज किया. So slowly over the last 10-15 years, it has gone like that. That पहले साल जब मैंने काम किया, truthfully, I got 0 work, and second year I did only 2 cases because it was so difficult to market the idea कि कोई external आदमी आके आपका कोई agreement बना सके और आप अपने दिल की बात, अपनी फैमिली की बात किसी को कह सको. तो ये हमारे इंडिया में ऐसा है. नाउ उल्टा हो गया है. उल्टा ये हो गया है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, and I know all of them, पूरी इंडिया में there are about 6 people who do this work full time. अच्छा, सभी CA में भी एग्रीमेंट बनाना, but they will make a legal agreement. That's not what I am talking about. मैं तो ये I am trying to go to the root and look at the problems in the family. जो वो प्रेशर कुकर में है वो CA नहीं करता है. So 5 or 6 people are there, and all of us have too much. So I got an inquiry 3 days ago. So I told that guy, I have no time. I can attend to you in January. So why is that? Because everybody is realizing that we don't want to be in that 80%, and we have to do something proactive. और proactive यही है, और तो कोई जादू मंतर है नहीं. So now people are coming this way. So I hope that 80-20 will become 70-30 and 60-40 and so on. But ऐतिहासिक, yes, historically, यही 80-20. There is a question on the chat. Till now, all the points discussed are subject to legal settlement. Right. Kindly suggest and guide
kindly suggest or guide us about the mutual understanding for a small nuclear family on the area of safety funds and succession? So, Mr. Gurjeet, आप इनको अनम्यूट कर सकते हैं? Yeah. हाँ, Mr. Yeah. Gurjeet, So, are you there? I am here, sir. I am here. Yeah. So, why do you say that this, whatever we have talked about, is subject to legal agreement? Can you explain your point of view, please? So the points we have discussed, these are applicable in private limited companies. What about the nuclear families? You know, those who don't plan for the legal upcomings and whatever you have discussed. Is it required for a small family or for a son or a daughter or a single child family sort of thing? Yeah. So, okay. So first of all, you should know that nothing I discussed today is about the legal aspect of it. As I said, that's a separate thing. And typically you need to have a legally binding agreement. If you are a public limited company, B, if you have private equity shareholders, C, if you have an external shareholder. So then that is separate. That is not what I have talked about today. That's called a shareholders agreement. It is entirely different process. Now coming to you and if you have a small family, 1 child, 2 child. So as I said, many of my cases are with people with 1 and 2 children because that is all that people have now. तो जो मेरा एग्जांपल था पंजाबी फैमिली का, वो भी 2 लड़के थे. हाँ, जो साउथ का है वो दे एक्चुअली सम मोर फैमिलीज चिल्ड्रन. बट right now the cases I am doing, having one case in Coimbatore, there's a father and son. So there is no legal agreement needed, but there is a lot of difference in their management style. And father is in a quandary how to deal with that. Son has come from abroad and he has entirely different ideas and somebody sent them to me. So wherever there is a need to resolve 2 people's mindset, that is where a person like me comes in. You don't need to have legal agreement. You know, if you have only 1 kid, then half the questions are not relevant. And mutual understanding is, very easy. The questions are not so complicated. So it will be very easy to sort out that. But some of these questions are relevant even for a smaller family. Especially the development of the child, the mentoring of that child, the value system that we put in that child. Because when we are gone, that value system will remain. And we will want that, most people will want कि फैमिली की जो परंपरा है, जो वैल्यू सिस्टम है, वो आगे चलती रहे. Not that people have an entirely different value system. So that kind of soft work is needed if you have 1 child. If you have 2 children, you need all of what I said. Because 2 children are siblings and they are always competitive, and all of whatever I for 1 hour, all of that. Am I clear? Very right, sir. Very right. I'm obliged, sir. You considered my question, and thank you so much, sir. Ashok, sir. Thank you to you, sir. Thank you to you also, sir. Thank you. Nitin bhai, any other questions are there? Not much. अभी इसमें काफी कुछ क्लियरिटी आ गई है और सर के जो स्लाइड्स थे वो जिन लोगों ने मेरे ख्याल से अगर स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो बहुत ही अच्छे स्लाइड्स थे और काफी इसके ऊपर डिस्कशन अच्छा हुआ है. कोई ऐसे बहुत क्वेश्चन नहीं है क्योंकि लोगों ने समझा और हाथों हाथ आंसर भी होना चाहिए. नितिन भाई, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये जो पीपीटी है मैं अशोक भाई को कल भेज दूंगा. तो in case you want to send, circulate it or whatever, you can do. Great, sir. Yeah, we can slowly circulate it. एक सवाल है किरण राठौड़. किरण राठौड़, are you there? किरण राठौड़. अच्छा, he's gone. Then it's okay. He's not there. Okay, fine. We'll leave it. I think Deepak Vora wants to say something. If you can unmute him.
Deepak bhai, you are on mute. I think sometimes, most cases, compromises are good, and so as to maintain peace and harmony. But sometimes the compromise can lead to inefficiency. Maybe the best person is not doing a particular job. A person who can lead the business into growth may not be able to do that job. And I'm on the other side of the spectrum. I'm the eldest, so I don't have an issue on that. But it can lead to this. I've seen it happening in places. Yeah, of course, it can lead to inefficiency, particularly if people are not accountable. And it is very difficult to make your children accountable. Let me tell you, I also have children. So, so it is not a very easy thing to do. That is why if we create a culture of accountability in the family, and if we create that as a value, as part of the value system of the next generation, then the family's future is on a sound footing. Maybe accountability, maybe accountability parameters for accountability for different jobs, they could be strictly defined. Maybe that could be a solution. Yeah, That you achieve 10%, that you achieve this, that you achieve this. Maybe accountability, and then answering back to self and to others. Yeah, and I have found that the model which we used in Delhi of having senior external people on the family business board has created huge accountability and actually growth. Okay. Because the external guy doesn't give a damn. He doesn't think, oh my God, aapko bura lagega ya acha lagega. He's fine. He's cool. If I'm an external advisor, I don't have to meet you after my meeting is over, right? So I don't have a stake in that relationship, which can be emotionally used to, pressurize me. Provided an external professional. Not necessarily. It depends on your family. But the external guy has one benefit that everybody is able to put everything on the table without fear. And that external guy, if he's a professional in my area, then we will know. No, it's not. We will all have seen only one or two families. Our family, अपने friend की family. You will have seen hundreds of families. Something you may benefit from it. But ये जरूरी नहीं है कि कोई external guy को आप लाइए. Yes, sir. Yes, sir. And your own family elders, if they are capable and willing, there's no need for an external guy. पहले के जमाने में थोड़ी ऐसे हार्वर्ड जाके लोग पढ़ के आते थे. बड़े लोग बैठते थे and they used to tell us, we used to do it. Good evening, Sunil bhai. Thank you, Ashok bhai sab. मेरा क्वेश्चन एक ये है कि एक फैमिली है, बिल्कुल जॉइंट फैमिली है, उसमें जो बड़े बच्चे हैं और जो बड़े लोग हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट को मानते हैं. About your voice is gone. हम लोग उनको अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बिठाते हैं तो वो okay. I am audible now. Yeah, you are audible. Okay. I am saying कि एक जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, अच्छा पूरा बिजनेस है, फार्मा का उन लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस है. Okay. But the eldest partner and the eldest director, they don't listen to code of conduct. they मतलब कोड ऑफ कंडक्ट को बनाने में उनका बहुत बड़ा अहम बात है, सब कुछ है, बट वो उसको अडेयर ही नहीं करते हैं. और जब उनकी अकाउंटेबिलिटी आती है तो उसके ऊपर वो लोग बुरा मान जाते हैं. जो एल्डर्स हैं, 2 elders मीनिंग बाय एक एल्डर्स है और एक 2-3 तीसरे भाई का एल्डेस्ट सन. तो ये अकाउंट, तो in that case how should we react? It's a very specific situation, so I can't really answer that without knowing much more. So I'm really sorry. In a particular family, I would have to ask you 10 more questions, and it's not an appropriate forum for that. Okay. ठीक है. तो आपसे मिलेंगे वो लोग.
Are we done, Ashok bhai? I think one of the biggest issues, one big issue that is being asked again by Mr. Deepak Vora, that post-COVID, where situations of business losses may pile up because people have stayed at home and businesses have not functioned properly, could arise into family issues. And the chances are both ways. As much as bonding has happened, I think the excessive amount of bonding has also led to lack of business. So also could inversely affect the relationship also. And then can be a blame games and all these things can start. So what do you recommend Yeah, see, should be done at this such times? no doubt about it. And it can happen that, see, normally, there's a very famous quotation from President Kennedy. He said, success has 100 fathers and failure is a bastard. So वैसे loss is also a bastard. So if there is a loss, nobody said ये मैंने किया. Loss always somebody else has done or we have all done and all of that. So there is always a period of difficulty in the business will lead, और बातें ऊपर आएगी. But I would say that one possibility is कि वैसे भी लॉकडाउन में हम बैठे ही हैं, so if why not put that time to good use and hold a family meeting internally. You don't need to call a consultant or anything. Hold a family meeting and try and talk about the future, build a business plan, talk positively. No, there is a lot of positive energy in growth. So what are we going to do now whenever we open? ये topic पे आप, if people are at home and they sit and they meet and they create a plan, then hopefully the other irritant will be small. Okay, so I think we have almost like had a lot of great understanding from this entire webinar. We have understood the whole element of the formation of and the importance of the formation of a family agreement and the kind of things that are actually required to do it. You have very nicely explained to us the family business board, the family fund, the family meetings, setting up the family policies, the role of women in the family, evaluation of family members, the kind of bonding that is required. One element very important is that what about people who don't want to stay in the family? What is the exit clause? Sometimes one member who comes out of a family of 5 brothers or 7 brothers or a large family, he creates a situation where the first member who exits from the company, the entire family falls like a pack of cards. And everyone in the next few months or 1 year gets split up and the entire family collapses. So I think exit clause or the way an exit has to be done has to be very practical, very sincere in its own way. And I think another very important element we discussed is succession. And I think in 90% of the wars fought are always for succession in the world. And who is going to take over the throne after the king dies or while the king is alive? The first plan is how the king can be removed and his youngest brother wants to take over. And I think we have seen 1,000 movies of this kind and heard a lot of stories. And this is actually a Ghar Ghar Ki Kahani in the true sense, where all want to become and be at the top. You said that they want to become Ram, but I think hardly anyone becomes Ram. 90% of them don't become Ravan. They become they take up other roles. I don't say they become Ravans, but they take up other roles. And I think it's a very important and sensitive element of succession that has to be planned. And if everyone is fully aware that the succession is an element of understanding and management more than anything,
I think one very important aspect is the level understanding of management and ownership. 99% of our business people, they confuse the understanding of management and ownership. Ownership is different and management is different, and they feel that every owner has got a right to manage, and every manager feels that I am an owner. And I think this is where the biggest conflicts have happened over the years, and the biggest families have been destroyed. So I think we have had a very fruitful discussion, Sunil Bhai. You guided us extremely well. Nitin Bhai, are you there? Yes, sir, I am there. Ashok bhai, I am there. So Sayam is handling the voices, muting. Yeah, I'm everybody is on. Yes, Okay, sir. Sunil ji ne Nitin Bhai, are you there to give the vote of thanks? Yes, sir, I am there. Are you Can't see your face, sir. मेरी आवाज आ रही है? खाली आवाज आ रही है, फेस नहीं दिख रहा है. फेस तो मेरा है सर, क्लियर दिख मेरा तो. We can see him. Okay, ठीक दिख रहा है. Okay, perfect. Okay. यस सर, सुनील जी ने जो चीजें समझाई है, मैं अगर देखा जाए तो एक एक वर्ड के ऊपर एक एक ऐसे लिखा जा सकता है. जैसा फॉर एग्जांपल हार्मनी, कोड ऑफ कंडक्ट, KRA मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एप्रिसिएशन, कम्युनिकेशन एंड व्हाट नॉट. और जैसा प्रभात शेखर जी भी बात कर रहे थे सर, किसी शायर ने कहा है जब जॉइंट फैमिली का बिजनेस होता है तो मुझे किसी शायर की बात याद आई कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है. मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती है और शेर पानी में नहीं दौड़ सकता है. इसलिए अगर फैमिली में अगर हम अहमियत सबको देते हैं, और एक शायर ने उसके अंदर ऐड किया था कि गलतियों से तू भी जुदा नहीं, मैं भी जुदा नहीं, दोनों इंसान है, तू भी खुदा नहीं, मैं भी खुदा नहीं. अगर हम इस बात को समझ लेते हैं, और फैमिली के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, जिस अंडरस्टैंडिंग के अंदर कहा गया है कि सम यू हैव टू बी कन्वीनियंस विद इनकन्वीनियंस थिंग्स आल्सो समटाइम. अगर आप हर बार हमारी कन्वीनियंस देखेंगे तो फैमिली टिक नहीं सकती. और जैसा कि किसी ने कहा है कि एक दिन तेरा एक दिन मेरा और हर दिन नया सवेरा, तो आपको कई बार सुन भी समझ लेना पड़ता और टाइम देने के बाद में उस चीज को हमको आगे ले जाना पड़ता. क्योंकि बड़े बड़े एम्पायर है सर, उस एम्पायर में उनकी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी रहो, और जीवन का अगर सही आनंद लेना है बिजनेस के अंदर, तो आपके यहाँ पे सारी चीजें हैं, सोफा सेट है, डिनर सेट है, टीवी सेट है, मेकअप सेट है, लेकिन अगर माइंड सेट नहीं है तो फिर आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते. तो आपको सबसे मेन है कि आपका माइंड सेट होना चाहिए सारी चीजें समझने के लिए. तो अगर माइंड सेट है तो फिर आपके सारे सेट काम में आ जाएंगे. सुनील जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने ग्रास्पिंग किया. आज हम आपका जो माइंड सेट है, माइंड सेट में हम जो सुन रहे हैं, 3 जनरेशन साथ में बैठ के सुन रहे हैं. हमारे जो बच्चे बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, उसने मुझे दूसरे कैबिन से आके बताया कि पापा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, बहुत चीज हम इससे सीखे. क्योंकि ये 6th जनरेशन है जो हमारा बिजनेस ज्वाइन कर रही, 6th जनरेशन. अरे वेरी गुड. प्लीज थैंक्स दूंगा सर, और माइंड स्पीक की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा. आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छी तरीके से, और हिंदी और इंग्लिश में आपने काफी इलाबोरेट करके समझाया, और मुझे लगता है कि सब लोग बहुत सेटिस्फाइड होंगे. वेरी वेरी थैंक यू मच सर फ्रॉम द माइंड टीम. Thank you very much, Sunil Bhai. Thank you, Ashok bhai. And thank you to all the listeners. We will be back again next week on Sunday at 2 p.m. with another episode of Mindspeak. Till then, have a wonderful day and a wonderful week ahead. All the very best to all of you. Thank you so much. Thank you.